Energy band diagram is removed from your syllabus. मेटल सेमीकंडक्टर इंसुलेटर है, इंट्रिंसिक भी है आपके पास, तो इलेक्ट्रॉन होल डोपिंग ये सारे का सारा बाकी है। ठीक है, तो फर्स्ट एनर्जी बैंड्स, आपको पता है एनर्जी बैंड क्या होते हैं, वैलेंसी के अकॉर्डिंगली कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में हम इसको डिवाइड करते हैं। So according to quantum mechanical law, energy of electron in free atom cannot have arbitrary value। और जिधर फर्स्ट एस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, p ਬਲੌਕ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, s ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਹੈ s and p એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ 'ਚ ਸਪਲਿਟ ਅਪ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ એનર્ਜੀ ਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਲਿਡ ਦੇ। ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। one is the valence band in which valence electron are present, then there is a gap known as forbidden energy gap, and then there is a conduction band. So whenever there is conductivity, an electron jump from the valence band to the conduction band. In case of conductor, the difference between the conduction band and valence band is quite less, but in case of insulator, the difference between conduction band and valence band is quite large. So whenever electron jump from valence band, it would reach to conduction band and it just fall in the forbidden. So that's why there is no conduction in case of insulators. इस चीज नो जरूरत नहीं है कुछ भी करने। Now the first one is metals. In case of metals, the conduction band and valence band. Conduction band and valence band, either they are overlapped or at a some distance. So the first possible energy band diagram showed that conduction band is only partially filled. With little extra energy, electron can easily reach to the empty energy level above the filled one, and the conduction is possible. And the second possible energy band diagram showed that conduction band is overlapping with the valence band. This is because the lowest level in the conduction band needs less energy and conduction star. Is that clear? In case of metal, the gap between valence band and conduction band is quite less, or both overlap with each other, so that with this small amount of energy they can just jump from valence band to the conduction. Then semiconductor. At absolute zero temperature, no electron has energy to jump from valence to conduction, and hence crystal is an insulator. At room temperature, some valence electron gain energy more than the energy gap and move to conduction band. ठीक है, अब जैसे ही उसको कुछ थोड़ी सी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, उसी एनर्जी की वजह से वो जंप कर जाता है फ्रॉम। देखो यार मैं नहीं ना खाना क्यों? ठीक है, तो इस तरह से ये वैलेंस बैंड से जंप करते हैं कंडक्शन बैंड में, और जो कंडक्टिविटी है वो स्टार्ट होनी शुरू है। मैं ये आपको अभी सेंड कर दूंगा, तो उसे एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए। यस सर। और इंसुलेटर के केस में द फॉरबिडन गैप इज क्वाइट लार्ज। तो जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं वैलेंस बैंड से, वो कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाते और इन बिटवीन फॉरबिडन गैप भी रह जाते। सो द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन एंड होल। अब आपने केमिस्ट्री में एक डिफेक्ट पढ़ा था, फ्रैंकल एंड शॉर्टकट इफेक्ट पढ़ा है,
एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में, कि एक इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को छोड़ देता है और जहां से इलेक्ट्रॉन मूव करता है वहां पे क्या होता है, एक एम्प्टी स्पेस रह जाती है जिसे हम नाम देते हैं वॉइड का या होल का। यस सर, पढ़ा है। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। तो वहां से हमारे पास टर्म आई इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। सो एक्चुअल में क्या होता है कि कोवलेंट बॉन्डिंग होती है किसी भी क्रिस्टल लैटिस में। तो whenever we supply some amount of energy, जो क्रिस्टल कोवलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक कर जाता है और कोवलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए। और जैसे इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन से मूव करता है वहां पे एक वैकेंसी, वहां पे एक वॉइड बच जाती है, खाली जगह बच जाती है जिसे हम नाम दे देते हैं होल। सो while coming out of covalent bond it leave behind a vacancy name, so sorry, it leaves a behind it leave behind a vacancy name hole. An electron from the neighboring atom can break away and can come to the place of the missing electron, completing the covalent bond and creating a hole at another place. देखिए यहाँ पे अगर मैं आपके साथ आपको एक एग्जांपल दूं, ये मेरे पास बॉन्ड है इस तरह से बने हुए, ये सब सारे के सारे आपस में अटैच है विद द कोवलेंट बॉन्ड। अब जब भी यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने पीछे एक खाली जगह छोड़ देगा। उस खाली जगह को भरने के लिए एक दूसरा इलेक्ट्रॉन वहां पे आएगा। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन वहां पे मूव करेगा तो क्या होगा, एक और नई जगह स्पेस जो है वो बच जाएगी। इसके और एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसकी कंसीडर करो कि आप क्लास में कुछ बच्चे हो। फर्स्ट इज जपजाप, देन इज जैसल वर्मा, उसके बाद परनीत, महक गुलाटी और अभिषेक सैनी, हरमन हरमन भव्य, नीतीश। ये इस तरह से बैठे हैं सारे के सारे। और जैसे ही क्लास से टीचर बाहर मूव किया तो एज यूजुअल क्या होगा, अभिषेक सैनी अपनी जगह से खड़ा हो जाएगा। अभिषेक सैनी मूव कर गया। जैसे ही अभिषेक सैनी यहाँ से मूव किया तो यहाँ पे क्या चीज रह गई है, होल, खाली स्पेस रह गई। अब उस खाली स्पेस को फिलअप करने के लिए जैसल वर्मा यहाँ पे आ गया। अब जैसल वर्मा जहां से उठ गया है वहां पे क्या हो गया, वैकेंसी क्रिएट होगी। उस वैकेंसी को पुल अप करने के लिए भव्य मूव कर गया, लेकिन भव्य जहां से मूव किया वहां पे वैकेंसी रह गई। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन और होल के बीच में एक मूवमेंट जो है वो चलती है। इज दैट क्लियर? यस सर। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन अपने पोजीशन को छोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है फ्रैंकल और शॉर्टकट इफेक्ट के अंदर, कि जैसे इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को छोड़ेगा वहां पे क्या होगा, एक वॉइड क्रिएट होगा और उस वॉइड को फिल अप करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। लेकिन जहां से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वहां पे फिर क्या होगा, एक वॉइड क्रिएट हो जाएगा। अब जहां जैसे यहाँ से भव्य मूव कर गया, भव्य जैसे ही मूव किया वहां पे एक स्पेस, वहां पे एक खाली वैकेंसी हो गई। उस वैकेंसी को फिल अप करने के लिए अगर नीतीश मूव कर रहा है यहाँ से अपनी सीट से, तो नीतीश ने इस वैकेंसी को तो फिल कर दिया, लेकिन अपने पोजीशन के ऊपर क्या हुआ, नीतीश एक वैकेंसी फिर से छोड़ गया जिसे हम नाम देंगे होल। अब यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो भी चार्ज होगा दैट चार्ज विल बी नेगेटिव, और होल के ऊपर जो चार्ज होगा दैट चार्ज विल बी पॉजिटिव। और हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में और इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पढ़ा है कि करंट कैसे मूव करता है, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ चार्ज। और यहाँ पे क्या चीज मूव कर रही है, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव। ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैट में हमने पढ़ा था पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्यों आते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को
लीव कर देता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन को गेन कर देता है। जो इलेक्ट्रॉन लीव करेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन लीव हुआ तो पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हुआ तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो इन दोनों की मूवमेंट से क्या होगा, किसी भी एक सेमीकंडक्टर के अंदर जो कंडक्टिविटी है वो स्टार्ट हो जाए। एक और चीज आपको मैं बता दूं, अगर हम कंपेयर करें, वी हैव कंडक्टर, वी हैव इंसुलेटर एंड वी हैव सेमीकंडक्टर। Forbidden gap between valence and conduction band is quite less or they just overlap. इंसुलेटर के बीच में, इंसुलेटर के केस में जो गैप होगा वो बहुत ज्यादा लार्ज होगा, सो दैट जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, वो कंडक्शन बैंड में नहीं मूव कर पाएगा, वो कहाँ पे चला जाएगा, फॉरबिडन गैप के। और सेमीकंडक्टर के केस में अगर हमारे पास नॉर्मल टेम्परेचर है तो इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेंगे। रूम टेम्परेचर के ऊपर जैसे इलेक्ट्रॉन, रूम टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर हाई होना शुरू होगा तो इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी गेन करेंगे और जंप करना स्टार्ट कर देंगे फ्रॉम कंडक्शन वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन। और जैसे ही ये चीजें मूव करेंगी, मैंने कहने का क्या मतलब है, जैसे वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो वहां पे पीछे क्या चीज रह जाएगी, एक हमारे पास vacancy, that vacancy is known as O, which is positively charged. Is that clear? Yes, sir. So this is how कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जो है वो मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन और होल्स की वजह से। ये देखिए, ये हमारे पास आ गया सेमीकंडक्टर जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी। तो जैसे मैंने इसको एनर्जी प्रोवाइड की, एनर्जी प्रोवाइड करने से क्या होगा, हीट एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन मूव कर गया, एज पर द एग्जांपल कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गया। देन जहां से कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ, इलेक्ट्रॉन मूव कर गया, इलेक्ट्रॉन मूव करने से वहां पे एक पीछे वैकेंसी रहेगी। आप इसे पिक्चराइजेशन को चेक कर पा रहे हो ना, सारे के सारे को, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट दिख रही है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ये देखिए, अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला, उसने दूसरे की स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया, लेकिन जैसे ही उसने अपनी स्पेस को छोड़ा वहां पे पीछे क्या हो गया, एक और वॉइड जो है वो एग्जिस्टेंस में आनी शुरू हुई। अब देखिए यहाँ पे वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे, इलेक्ट्रॉन ने जंप किया लेकिन पीछे क्या रह गया, एक स्पेस रह गई। ये क्लियर होगी आपको पिक्चर सारी की सारी? मैंने आपको लेमैन लैंग्वेज में एक बार बता चुका हूँ, अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज बताइए मुझे। No doubt, sir. ठीक है, क्या कह रहे हैं? यस यस सर, हाँ जी जैसल बताइए क्या डाउट है? So this is about intrinsic semiconductor कि किस तरह से होगा। नेक्स्ट इज डोपिंग। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड से फ्री होता है। अब अगर हमारे पास हाईली एनर्जेटिक हो कि हम उसके बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाएंगे तो हम सेकंड वे यूज करते हैं, दैट इज डोपिंग। अब अभी ओलंपिक्स चल रहा है तो ओलंपिक्स के बाद बहुत सारा ये जो चीज है आपको सुनने में मिलेगी, डोपिंग। डोपिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी एक एक्सटर्नल पार्टिकल को अपने बॉडी के अंदर इंसर्ट करना सो दैट हाई एनर्जी मिल सके। ठीक है, सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी से क्या होगा, इम्प्योरिटी हमें प्रोवाइड करेगी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और जैसे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे साथ में क्या चीज मूव करना स्टार्ट कर जाएगी, होल्स।
So this is how impurity helps. So doping is, please write down the definition. It is a process of deliberate addition of very small amount of impurity into an intrinsic semiconductor. जो एटम को हम ऐड करेंगे उन्हें हम नाम देंगे डोपेंट का. द सेमीकंडक्टर जो इम्प्योरिटी जिनमें होगी उनको हम बोलेंगे इम्प्योर और एक्सट्रिंसिक सेमी. अब कौन कौन से मेथड है, ये एग्जाम में सिर्फ आपको मेथड ही पूछे जाएंगे और कुछ नहीं आएगा. तो सबसे पहले हीटिंग द क्रिस्टल इन द प्रेजेंस ऑफ डोपेंट एटम. हम क्या करते हैं, एक डोपेंट एटम इस तरह से कंसीडर करते हैं, कोई भी एक डोपेंट एटम. उस डोपेंट एटम के पास हम एक इम्प्योरिटी को प्लेस कर देते हैं. इम्प्योरिटी को प्लेस करने के बाद हम इन दोनों चीजों को हीट करना स्टार्ट करते हैं. जैसे ये हीट करते हैं तो ये मोल्ट हो जाएगी. मेल्ट होने के बाद ये इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगी. तो दिस इज अ फर्स्ट मेथड जिससे हम इसको डोपिंग कर सकते हैं. एंड इन द सेकंड मेथड, एडिंग इम्प्योरिटी in the molten state of semiconductor, bombarding the semiconductor by ions of impurity. तो जैसे आपने पढ़ा हुआ है, हम एक प्योर मेटल प्लेट लेते हैं, उस प्योर मेटल प्लेट के ऊपर हम टारगेट कर देते हैं इम्प्योरिटीज को. जैसे ही इम्प्योरिटीज स्ट्राइक करती हैं तो स्ट्राइक करने के बाद की वजह से बिकॉज ऑफ द हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी वो उसके अंदर इम्बेंड होना शुरू हो जाता है. और जैसे जैसे वो इम्बेंड होती है प्योर मेटल जो है वो इम्प्योर मेटल में कन्वर्ट होता है. सो देयर आर थ्री मेथड्स. फर्स्ट वन इज heating the crystal in the presence of dopant atom, adding impurity in the molten state, bombarding the semiconductor by ions of impurity. Heating the crystal in the presence of dopant atom में क्या होता है, ये भी मैं आपको बता दूं. एक एटमॉस्फेयर जनरेट किया जाता है जिस एटमॉस्फेयर में नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है इस तरह से. तो ये इम्प्योरिटीज होती हैं, एक प्योर मेटल को लेके इसे फ्यूज किया जाता है, गर्म किया जाता है. जैसे ही हम इसको गर्म करते हैं तो ये क्या होता है, मेल्ट हो जाता है और ये इम्प्योरिटीज इसके ऊपर आके गिरनी शुरू हो जाती है. और जब ये इम्प्योरिटीज इसके ऊपर गिरती है तो ये उसके अंदर अपने आप फिल अप हो जाती है. So these are the three methods by which we can add impurity to a pure metal. अब दो तरह की impurities है हमारे पास. वन इज जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे और सेकंड इज जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होंगे. So we can call them n-type semiconductor and p-type semiconductor. तो यहाँ पे आप देखो n-type semiconductor में हमने एक impurity ऐड की. इस पिक्चर को अच्छे से देखो पहले. ये मेरे पास जो क्रिस्टल गिवन है दिस इज ऑफ जर्मेनियम. जर्मेनियम में सबके सब ने चार चार बॉन्ड जो है वो फिलअप किए हुए हैं, बनाए हुए हैं. तो इसमें मैंने एक इम्प्योरिटी ऐड की विच इज पेंटावलेंट. पेंटावलेंट का मतलब जिसके लास्ट वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन. जैसे मैंने उस इम्प्योरिटी को ऐड अप करवाया तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ने जर्मेनियम के साथ बॉन्डिंग कर ली, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन वहां पे एक्स्ट्रा बचा. अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इन सारे के सारे क्रिस्टल को डिस्टर्ब करना शुरू कर देगा. तो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर गया. अब इसकी जगह पे दूसरा इलेक्ट्रॉन फिर से, तो ये उस जो जगह पे खाली जगह बचेगी वहां पे दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटर करता है. तो ये देखिए वैलेंस बैंड. इम्प्योरिटी की वजह से क्या होगा, डोपिंग की वजह से जो डिफरेंस है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो इलेक्ट्रॉन डोनर लेवल बढ़ गया. डोनर लेवल बढ़ने से इजीली इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करना स्टार्ट करके फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन. आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर किस तरह से वर्क कर रहा है हमारे पास. परमीत, महक,
Yes, sir. Understood. Yes, sir. Understood. तो नेक्स्ट हमारे पास है एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये सारा पढ़ने वाली बातें हैं इसकी, आप कर लीजिएगा। यस, नेक्स्ट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर के केस में हम यहाँ पे जो इम्प्योरिटी ऐड करेंगे वो ट्राइवलेंट होगी, मतलब 3 बॉन्ड बन जाएंगे, एक और पहले से रह जाएगा। तो जर्मेनियम के साथ मैंने इंडियम को ऐड करवाया, 3 ने बॉन्ड बना लिए, एक मेरे पास खाली स्पेस रह गई। तो वो जो खाली स्पेस है उसे हम नाम देंगे होल का। उस होल को फिल अप करने के लिए इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, फिर जहां से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वहां पे एक होल रह जाएगा। सो दिस इज हाउ पी टाइप सेमीकंडक्टर्स वर्क। एनी डाउट? बस उसका उल्टा है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम। वहां पे पहले इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और यहाँ पे सबसे पहले एक होल जो है वो मूव करना शुरू। ये डिफरेंस है दोनों के बीच में कि उसमें हम कौन कौन सी टॉपिक करवाते हैं, कैसे करवाते हैं, ये भी डिफरेंस है। द नेक्स्ट इज कंडक्टिविटी। ये मैं आपको कल करवाऊंगा जब आपका ये एन टाइप और पी टाइप आप पूरी तरह से करें, और ये फिर आपका कवर हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट जो है वो आपका कवर हो जाएगा कल। तो स्टूडेंट, मैं आपके साथ इसकी पीडीएफ शेयर करूंगा या ऐसे ही इसकी स्लाइड शेयर कर दूंगा, तो उसे प्लीज अच्छे से चेक कर लीजिएगा। कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो प्लीज डिस्कस करिए। Okay, sir. जब जाप भी चला गया। अभिषेक, भव्या, जैसल, महक, परमीत, बेटा सब बच्चे से अच्छी तरह से कर लीजिएगा। ये आपके Okay, sir. बेनिफिट के लिए, सो दैट आफ्टर आप फर्स्ट हमें Yes, sir. हम सिर्फ रिवीजन की तरफ कंसंट्रेट कर सके और हमें कोई फालतू का काम ना करें। इज दैट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. थैंक यू वेरी मच फॉर द डे। मिलते हैं कल।